So, hello everyone, welcome to my channel, The Learning Homemaker. Hi guys, imagine you are 10-year-old walking alone in the dark, scary mountains at night. And suddenly you feel that the mountains are alive and chasing you. Sounds like a horror movie, right? Well, this is actually a famous scene of William Wordsworth's The Prelude Book 1. Today we are going to explore this incredible autobiographical epic. Wordsworth shows how nature acts as our first and best teacher through fear and love. Using childhood memories of stealing boats, ice skating, and listening to rivers, in this video we will break down the original 1805 text into super simple explanation. If you want to top your exams and actually understand the core of Wordsworth, you are in the right place. Okay? So today we are diving into one of the greatest masterpieces of romantic poetry, William Wordsworth, The Prelude, Book 1. Before we look at the lines, let me ask you a question. Have you ever felt completely trapped in the hustle of cities, life, or college stress, and then suddenly a trip to the mountains or a simple cold breeze made you feel alive again? That is exactly how this poem begins. This is not just an old poem. It's an emotional journey of a boy growing up with nature. We will decode it paragraph by paragraph, lines by line, with real life examples. So grab your notebook and let's get started. So, oh, there is blessing in this gentle breeze, a visitant that while it fans my cheeks, though seem half conscious of the joy it brings from the green fields and from yon azure sky. So, देखिए, the poet feels a spiritual blessing in the soft gentle wind. पोएम को बहुत ही ये जो सॉफ्ट जेंटल विंड वहाँ चल रही है उनको बहुत स्पिरिचुअल ब्लेसिंग फील होती है. ही कॉल्स ब्रीज अ विजिटेंट. ब्रीज को उन्होंने क्या बोला है? एक विजिटेंट बोला है. अ गेस्ट और अ विजिटर that touches and cools his cheek, जो उसके गालों को छूकर निकल रही है. He imagines that this breeze coming from the lush green fields and the beautiful blue azure sky. Azure means sky. तो ये जो हवा ग्रीन फील्ड से होकर ब्यूटीफुल ब्लू से स्काई से होकर आ रही है is partly aware of the profound happiness and relief it is bringing to him. बहुत ही रिलीफ फील कर रहे हैं वो. यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि जो ठंडी ठंडी कोमल हवा चल रही है ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है. दिस इज़ नॉट मतलब इट इज़ अ ब्लेसिंग. और वो इस हवा को एक विजिटेंट कह रहे हैं, गेस्ट कह रहे हैं, जो उनके गालों को सहलाते हुए गुजर रही है. उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इस हवा को भी थोड़ा बहुत एहसास है, हाफ कॉन्शियस है कि जो नीला आसमान है, एज़्योर स्काई मीन्स नीला आसमान, ठीक है, जो नीला आसमान है और हरे भरे खेत हैं, ठीक है, हरे भरे फ्रॉम द ग्रीन फील्ड्स, यह बहकर वहाँ से बहकर आने के बाद उस थके हुए कवि को कितना सुकून और कितनी खुशी दे रही है. ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप पूरे हफ्ते की भयंकर गर्मी और उमस के बाद एसी वाले कमरे से निकलकर शाम को अचानक अपनी छत पर जाते हैं ना, और तभी समझ लीजिए बादलों के बीच ऐसी ठंडी हवा का झोंका आता है जो आपकी सारी थकान मिटा देता है ना. तो आप अपनी आंखें बंद करके उस हवा को फील करते हैं. ऐसा लगता है कि जैसे हवा सिर्फ आपके लिए ही आई हो, है ना. यह हवा का झोंका वही मैजिकल मोमेंट है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. वॉट एवर इट्स मिशन द सॉफ्ट ब्रीज कैन कम टू नन मोर ग्रेटफुल देन टू मी. Escaped from the vast city where I long had been a discontented sojourner, now free as a bird to settle where I will. देखिए यहाँ वर्ड्सवर्थ क्या कह रहे हैं. वर्ड्सवर्थ says that whatever the purpose of this breeze might be, कुछ भी पर्पज़ हो उसका, कोई भी पर्पज़ हो, but no one is more thankful for it than him. वो बोल रहा है लेकिन मुझसे ज़्यादा कोई भी इसका थैंकफुल नहीं होगा. He has just escaped from a huge crowded city where he lived for a long time as an unhappy restless traveler. वो जिस जगह रह रहा था वहाँ पर वो अनहैप्पी था, रेस्टलेस था, है ना. क्राउडेड सिटी, कभी कभी हम भीड़ भाड़ से इतना थक जाते हैं ना, हम पूरा एकांत ढूंढते हैं. बट नाउ ही इज़ कम्प्लीटली फ्री. अभी वो कैसा फील कर रहा है? कम्प्लीटली फ्री फील कर रहा है. एंड जस्ट लाइक अ बर्ड दैट कैन फ्लाई
कैसा फील कर रहा है, जैसे एक फ्री एज अ बर्ड टू सेटल वेयर आई विल, ऐसी बर्ड जो कहीं भी उड़कर जा सकती है, चूज एनी ट्री टू लिव ऑन, है ना, सेटल वेयर आई विल, जहाँ पे वो चाहे चूज एनी ट्री टू लिव ऑन, कहीं पे भी वो बैठ सकती है, कहीं पे भी रह सकती है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि वो मतलब जो ब्रीज है उसका भले ही जो हमारे वर्ड्सवर्थ है वो कहते हैं कि इस हवा का, इस ब्रीज का कोई सा भी पर्पज़ हो, लेकिन मेरे से ज़्यादा कोई भी थैंकफुल नहीं है इसके लिए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी उस बड़े शहर लंदन, वो बड़े शहर यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लंदन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो एक अनहैप्पी मीन्स असंतुष्ट, डिसकनेक्टेड सोजनर, डिसकंटेंटेड सोजनर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिसकंटेंटेड सोजनर नाउ फ्री, उसका मतलब यही है कि वो बिल्कुल भी असंतुष्ट है, वाले मतलब ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ की तरह तड़प रहे थे, दुखी थे, लेकिन आज वो फ्री फील कर रहे हैं, फ्री एज अ बर्ड टू सेटल वेयर आई विल, ठीक है, बिल्कुल एक आज़ाद पक्षी की तरह जो जहाँ चाहे वहाँ जाकर बैठ सकते हैं, ठीक है। जैसे वैसा ही है कि जैसे आप सोच लीजिए कोई इंसान है जो सालों तक एक जॉब में फंसा हो, है ना, वो वहाँ पे बिल्कुल घुटन फील करता हो, उसका बॉस अच्छा ना हो, वो रोज़ दुखी होकर ऑफिस जाता हो, कहीं चलिए मैं इसको आपको इसका एग्जांपल देके आपको, फिर वो एक दिन अपनी जॉब छोड़ दे और अपने मन का काम शुरू कर दे, है ना, तो अब उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, वह सुबह उठ कर चाय पी सकता है, कभी भी अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है ना, तो वो ऐसा ही बिल्कुल फील कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। What dwelling shall receive me, in what vale shall be my harbor? Underneath what grove shall I take up my home, and what clear stream shall with its murmur lull me to rest? The earth is all before me. So ठीक है, मैं हाफ करके पढ़ा रही हूँ आपको क्योंकि पूरा एक साथ मिक्सअप हो जाएगा। सो हियर द पोइट आस्क हिमसेल्फ, वो खुद से पूछ रहे हैं वेयर ही शुड लिव नाउ, और पूछ रहे हैं कि कहाँ, अब मुझे कहाँ रहना चाहिए। व्हाट डेलिंग शैल रिसीव मी, इन व्हाट वेल शैल बी माई हार्बर, ठीक है, हार्बर मीन्स यहाँ पे शेल्टर है, ठीक है, वेल मीन्स वैली, ठीक है। सो ही वंडर्स विच हाउस और ब्यूटीफुल वैली विल गिव हिम शेल्टर, जो हार्बर यहाँ ये बोल रहे हैं, हार्बर मीन्स शेल्टर, मतलब कौन सी वैली और कौन सा हाउस, ही वंडर्स विच हाउस और ब्यूटीफुल वैली विल गिव हिम शेल्टर, कौन शेल्टर देगा उसे। अंडर विच ग्रुप ऑफ ट्रीज, ग्रोव मीन्स यहाँ पर ट्रीज से है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, अंडरनेथ व्हाट ग्रोव शैल आई टेक अप माई होम, मतलब विच, अंडर विच ग्रुप ऑफ ट्रीज, ग्रोव मीन्स ट्रीज, शुड बी मेक हिज होम। He wonders which clear river or stream will sing a quiet lullaby with its sound, murmur, मतलब कौन उनको मतलब लोरी सुनाएगा, to put him to sleep, उनको सुलाने के लिए। The entire world is open wide in front of him. The earth is all before me, उनका मतलब था कि सब कुछ मेरे सामने पूरा खुला हुआ है। The entire world is open wide in front of him, मतलब वो फ्री होने के बाद वर्ड्सवर्थ खुशी से, मतलब बहुत हैप्पी हैं वो, और खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं कि अब कौन सा घर मेरा स्वागत करेगा, ठीक है, मैं किस खूबसूरत वैली में अपनी घर को बनाऊंगा, हार्बर, कौन मुझे शेल्टर देगा, हार्बर, शेल्टर मीन्स हार्बर, तो मुझे किन पेड़ों के झुंड, ग्रोव के नीचे अपना घर बनाना चाहिए, और कौन सा साफ पानी की नदी अपनी कल कल की आवाज़ से, कल कल, मरमर मीन्स यहाँ पे उसी से है आपका मरमर, ठीक है, और लुल मीन्स लुलबाई, जो म्यूज़िक होता है ना, सूदिंग म्यूज़िक, तो ये मुझे कौन लोरी सुनाकर सुलाएगी, ये अब यह पूरी धरती मेरे सामने खुली पड़ी है। द अर्थ इज़ ऑल बिफोर मी, पूरी धरती मेरे सामने खुली पड़ी है, उनका कहने का मतलब ये था। मान लीजिए आप कॉलेज और हॉस्टल की पढ़ाई पूरी करके अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले हो, है ना, और आपके पास कई सिटीज़ से जॉब के ऑफ़र आए हैं। अब आप ऐप खोलकर बैठे हो और आप सोचो कि मैं कहाँ रहूँ यार, मुंबई में रहूँ, बैंगलोर में रहूँ, पहाड़ों में रहकर काम करूँ, कहाँ रह के काम करूँ। ये जो लाइफ का जो खूबसूरत मोड़ है ना, जहाँ सारे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, वर्ड्सवर्थ उसी एक्साइटमेंट को फील कर रहे हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं अभी आगे, एक सेकेंड, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। With a heart joyous or not scared at its own liberty, I look about, and should the chosen guide be nothing better than a wandering cloud, I cannot miss my way. I breathe again. देखिए अभी वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। The poet is filled with joy and is no longer afraid of sudden ultimate freedom.
अब वो इतनी खुशी से भरे हुए हैं, इतने जॉय से भरे हुए हैं कि अभी उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं है. ही लुक्स अराउंड एट द ओपन नेचर. ठीक है. एंड शुड बी चूजन गाइड be nothing better than a wandering cloud. He looks around at the open nature. He confidently states that even if his chosen guide for this journey is as simple and aimless as a drifting wandering cloud, he will still not lose his path. He takes a deep breath of relief, feeling spiritually alive again. इसमें वर्dsworth कह रहे हैं कि वो इतने खुश हैं कि अब उन्हें इस खुली आज़ादी से, फ्रीडम से कोई डर नहीं लग रहा है. वे अपने चारों तरफ देखते हैं. ठीक है. ही लुक अबाउट एंड शो द चूजन गाइड. अपने चारों तरफ देखते हैं और पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि इस सफ़र में मेरा रास्ता दिखाने वाला गाइड अगर कोई नहीं है. ठीक है. एंड शुड द चूजन गाइड बी नथिंग बेटर देन अ वॉन्डरिंग क्लाउड. क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर? लेकिन बल्कि आसमान में भटकता हुआ एक वंडरिंग क्लाउड, एक आवारा बादल भी हुआ तो भी मैं अपना रास्ता कभी नहीं भटकूंगा. ठीक है. आई कैन नॉट मिस माई वे. ठीक है. तो भी मैं नहीं भटकूंगा अपना रास्ता. वो राहत की एक गहरी सांस लेते हैं एंड ब्रीद अगेन, और सुकून महसूस करते हैं. ठीक है. ही टेक्स अ डीप ब्रीथ ऑफ रिलीफ, फीलिंग स्पिरिचुअली अलाइव अगेन. वो दोबारा से ऐसा फील कर रहे हैं कि वो स्पिरिचुअली दोबारा से रिवाइव हो गए हैं, पूरा अलाइव हो गए हैं अगेन दोबारा से. ठीक है. कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आप समझ लीजिए कि आप बहुत लंबे समय के बाद अकेले किसी सोलो ट्रिप पे जाओ. मतलब ऐसा होता है ना कि आप लोग डेली रूटीन करते करते, हम हाउस वाइफ्स की बात कर लें या जो ऑफिस ब्रदर्स हैं मेरे जो ऑफिस जाते हैं वो अपने डेली रूटीन से पक जाते हैं. हम लोग हाउस वाइफ्स हैं तो हम लोग अपने डेली रूटीन से कितना ना, हमें वही मोनोटियस होता है कितना सा कि हम हर वक्त हम एक ही सेम रूटीन हम सुबह से लेकर शाम तक फॉलो करते हैं. वही सुबह उठना, झाड़ू पोछा, बर्तन खाना. तो जब आप बहुत लंबे समय से एक ही काम कर रहे हो और फिर कभी आप एकदम से अकेले निकलो या अपने मायके जाओ या मेरे जो ब्रदर्स हैं वो अपने घूमने जाएं, सोलो ट्रिप पे जाएं, तो आपके पास कोई फिक्स मैप या जीपीएस नहीं है, ना ही कोई सख्त टाइम टेबल है. आपका मन आया जब आप चाहे उठो. मायके में तो ऐसे ही होते हैं ना, जब मन आया तब उठें, है ना. जब मन आया तो खाना खा रहे हैं, जब मन आया तो मतलब अपनी धुन में गाड़ी चला रहे हैं. सोचते हैं कि मतलब आज रास्ता भटक भी गए ना तो कोई बात नहीं, जहाँ ये रास्ते ले जाएंगे वहीं मेरी मंजिल होगी. तो ये बिना किसी पाबंदी के घूमने का असली मज़ा है. ठीक है. यहाँ पर वो उसको इंजॉय कर रहे हैं विलियम वर्dsworth. ठीक है. वो यही कहना चाह रहे हैं. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ट्रांसेस ऑफ थॉट एंड माउंटेन्स ऑफ द माइंड. ट्रांसेस ऑफ थॉट एंड माउंटिंग्स ऑफ द माइंड. ठीक है. एज वर्dsworth स्टेप्स इनटू नेचर, मैं आपको बोल रही हूँ, अ रश ऑफ डीप पोएटिक थॉट्स ऑफ एंड हाई इंस्पिरेशंस. माउंटिंग्स ऑफ द माइंड मतलब हाई इंस्पिरेशन क्विकली ओवरवेलम हिम. जब वो जैसे एंटर करते हैं ना नेचर में, वर्सेस स्टेप इनटू नेचर, ट्रांसेस ऑफ थॉट, बहुत सारे थॉट्स, रश ऑफ डीप पोएटिक थॉट्स उनको आते हैं. और माउंटिंग ऑफ माइंड्स मतलब है बहुत ही हाई इंस्पिरेशन वाले, क्विकली ओवरवेलम हिम, उनको ओवरवेलम कर देते हैं. एंड सडनली ही फील्स दैट द हैवी बर्डन ऑफ हिज अननेचुरल सेल्फ, द फेक दैट. देखिए सेकेंड लाइन क्या है हमारी, कहाँ गया, हाँ, माउंटिंग ऑफ द माइंड्स come fast upon me, it is shaken off that burden of my own unnatural self. क्या कह रहे हैं वो कि suddenly he feels that the heavy burden of his unnatural self, the fake artificial personality he had to maintain in the city, जो वो मेंटेन करते थे अननेचुरल मतलब फेक पर्सनैलिटी, जो वो नहीं है, जो वो कैरी करते थे सिटी लाइफ में. ठीक है. द बर्डन ऑफ own unnatural self, the heavy weight of my many a wearing day not mine. ठीक है. wearing day not mine and such as were not made for me. हाँ. Personality he had to maintain in the city is completely shaken off. He is finally free from the exhausting weight of those tired, weary days in the city that did not suit his true poetic soul. यहाँ पर विलियम वर्dsworth कह रहे हैं कि जैसे ही वो नेचर के करीब आए ना तो उनके दिमाग में बहुत सारी प्रेरणा, वो एकदम बहुत सारा सैलाब आ गया. ठीक है. माउंटिंग्स ऑफ माइंड, हाई इंस्पिरेशंस, राइट. वो कहते हैं कि जब शहर में रहते रहते जो मेरे ऊपर एक नकली बनावटी व्यक्तित्व का बोझ था, बर्डन ऑफ माई अननेचुरल सेल्फ आ गया था, उसे मैंने झटक कर दूर फेंक दिया. इट इज़ शेकन ऑफ, वो मेरे से दूर फेंक दिया मैंने. वो कहीं थका देने वाले दिनों कि उस भारी बोझ हैवी वेट से आज़ाद हो गया. ठीक है. और उनका जो असली रूप नहीं था और ज़िंदगी उनके लिए बनी ही नहीं थी वो.
ठीक है। आप ऐसे समझो जैसे आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में हो, है ना, जहाँ आपको रोज़ सूट वूट पहनकर चेहरे पर एक नकली स्माइल रखकर क्लाइंट से हो बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना कैजुअली और ऑफिशियली आपको बात करनी पड़ती है, तो वो आपका क्या होता है, अननेचुरल सेल्फ होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप वीकेंड पर अपने घर आते हैं, अपने पुराने दोस्तों के साथ शॉर्ट्स और टी शर्ट में चाय और टोस्ट लेकर बैठते हैं, या अपनी बकवास फॉर्मल लाइफ का सारा तनाव भूल जाते हैं। आप एक गहरी सांस लेकर कहते हैं कि भाई असली सुकून तो यहाँ पर है ना, वो कॉर्पोरेट लाइफ तो मेरे लिए बनी ही नहीं थी। इट्स जस्ट लाइक दैट। वो विलियम वर्ड्सवर्थ वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उस अपनी कि मैं एट द हैवी वेट ऑफ मैनी अ वेरी डे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सो long months of peace, if such bold word accord with any promises of human life, long months of ease, undisturbed delight are mine in prospect. देखिए यहाँ पोइट क्या कहना चाह रहे हैं, द पोइट लुक्स फॉरवर्ड टू हिज फ्यूचर विद ग्रेट होप, ठीक है। long months of peace, if such bold word accord, he believes that many long months of absolute mental peace, comfort and pure uninterrupted joy, undisturbed delight are waiting for him ahead in the lap of nature. बहुत टाइम से, बहुत महीनों से, long months of peace, बहुत टाइम से जो undisturbed delight था ना उनका, uninterrupted joy था, वो वेट कर रहा था नेचर की गोद में उनका, ठीक है। With any promises human life, although he doubts its perfect peace is ever fully promised in human life, है ना। Long months of ease and undisturbed delight are mine in prospect. He is highly optimistic about this beautiful future. बहुत ही optimistic हैं वो। बोल रहे हैं कि मैं इस समय को लेकर बहुत ही optimistic हूँ, बहुत ही, मतलब जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। पैसिमिस्टिक तो होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। वो कहते हैं कि जो आने वाले कई महीने मेरे लिए सुकून, पीस, आराम और ईज़, किसी के लिए, किसी रुकावट के लिए मिलने वाली परम खुशी, अनडिस्टर्ब डिलाइट से भरे होने वाले हैं, जो आने वाले हैं, ठीक है। लॉन्ग मंथ्स ऑफ पीस, बहुत सारे महीने अब आ गए आने वाले मेरे लिए, बहुत ही सुकून भरे होने वाले हैं, पीस एंड ईज़, ओके। अनडिस्टर्ब डिलाइट से भरे होने वाले हैं। हालांकि वो ब्रैकेट में लिखते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में पूर्ण शांति का वादा करना एक बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे हैं ना यहाँ पे कि विद एनी प्रोमिसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इफ सच बोल्ड वर्ड अकॉर्ड, बहुत ही, मतलब इंसानी जीवन में आप ये बोल दो कि हमारी ज़िंदगी में आप कुछ नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी बात है, आप इससे बोल नहीं सकते हो। फिर भी नेचर के बीच में उन्हें अपने सामने सिर्फ सुकून भरा भविष्य दिखाई दे रहा है, बहुत एकदम फ्यूचर उनको बहुत ही पीसफुल लग रहा है। मतलब मान लीजिए आप कॉलेज के बहुत कठिन फाइनल एग्जाम खत्म हो गए आपके, अब आपके पास पूरे 2 महीने की लंबी छुट्टियां हैं, जैसे बच्चों की समर वैकेशन है ना, ऑफिस वालों की जॉब होती है, तो छुट्टियों के पहले दिन जब आप सुबह उठते हो ना, तो आपके दिल में बड़ा ही गजब का सुकून होता है। जैसे लोगों के वीकेंड पे होता है कि भाई सैटरडे का अभी रात बड़ी सुकून भरी गुजरेगी, भले ही आपका संडे ऐसा टेंशन में जाता है कि भाई अब तो हमको मंडे को ऑफिस निकलना है, टीचर्स को टीचिंग के लिए जाना होता है, हाउस वाइफ की तो खैर छुट्टी होती ही नहीं है, ना संडे, ना मंडे, ना ट्यूसडे, तो उनकी तो 24 आवर्स है। तो जो जॉब वाले हैं उनको एटलीस्ट संडे तो मिल जाता है ना। हाउस वाइफ्स का सोचो, उन बेचारे को कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, मैं भी हूँ ना इसलिए बोल रही हूँ ऐसा नहीं है, हार्ड वर्किंग वो भी होते हैं, बस ये कि हाउस वाइफ्स को कभी संडे नहीं मिलता है, ये बात तो तय है। कोई बोला ना कि संडे आज तो, भाई हमारा संडे कभी नहीं होता है, ठीक है। हम 24 आवर्स वर्क ही करते हैं बस, कभी कुछ कर रहे होते हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होते ज़िंदगी के, ठीक है, हाउस वाइफ्स के लिए। सो जो शुरुआत की जो छुट्टी के पहला दूसरा दिन होता है ना, तो हम बड़ा सुकून होता है हम लोग कि अब तो अगले 2 महीने तक हमारी असाइनमेंट नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है ना। जिनकी टीचिंग जॉब होती है वो भी सोचते हैं कि भाई अब समर वैकेशन चल रहे हैं, लेकिन वो तो मदर हैं, हाउस वाइफ से तो उन्हें तो काम करना ही पड़ेगा बस। लेकिन जिनकी जॉब होती है, जो फील्ड में है, तो वो सोचते हैं कि भाई आराम ही आराम, मज़े करना है। तो वैसे ही वर्ड्सवर्थ भी आने वाले समय के लिए बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसके साथ अभी आज का सेशन यहाँ ही एंड करूँगी, आज की क्लास। मिलती हूँ आपसे, मैं वीक में 2 डेज़ ही ला पाऊँगी, बिकॉज़ इट्स वेरी हेक्टिक शेड्यूल, बहुत हेक्टिक है अभी इस टाइम, तो इसीलिए केवल वीक में 2 डेज़। और आप लोग भी आराम से अपना, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स हुए बहुत सारे, तो हम बिल्कुल कछुए वाली चाल चलेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेन। तो हम धीरे धीरे चलेंगे और एक एक करके वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। गहराई से जाएंगे, हम किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, कोई भागा दौड़ी नहीं है, कोई रेस नहीं लग रही है, कुछ नहीं करना है, अपने आप को बस इस तरीके से तैयार करना है कि कहीं भी पीछे ना रहे। और मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगी सबसे बढ़िया कि देखिए कोई भरोसा नहीं है जीएस को कब कहाँ इंक्लूड कर दें ये लोग सिलेबस में, क्योंकि अभी टीजीटी की और पीजीटी की वैकेंसी निकलने वाली है विद इन 1 मंथ, जुलाई में आ जाएंगी, तो उसका सिलेबस आई थिंक चेंज होने की संभावना है। तो यू हैव टू प्रिपेयर जीएस ऑल्सो, आपको धीरे धीरे जीएस भी प्रिपेयर करना पड़ेगा।
अगर आप TGT PGT या GIC के लिए आप सोचते हो तो धीरे धीरे करना शुरू करो। देखो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, तो आप 1 घंटा रोज़ निकालो, GS भी पढ़ो साइड में, और इंग्लिश तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। और आधा घंटा रोज़ ग्रामर के लिए, वोकेबलरी के लिए निकालिए। वैसे मैं वोकेबलरी के शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ही होते हैं वो, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स दैट कम्स इन आवर TGT PGT एंड GIC lecturer exams. So I always used to post that word, that important words. So आप शॉर्ट्स मेरे देख लिया करो, ठीक है। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे को हम कवर करेंगे। बुक 1 हम कंप्लीट करके फिर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की किसी और रचना को उठाएंगे, ओके। अगर आज की क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग, ओके। थैंक यू।